So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 14. Okay. And what is the name of the subject? The name of the subject is heat transfers. So, boys and girls, in our previous lectures, what is we learn? We learn about the Cartesian coordinate equations, then cylindrical equations, then spherical equations. Okay. So today we have to discuss some another new topics. Okay. So what is the name of this topic? Let's we focus now. So see here. So write down this name. The name is heat conduction through a plane wall. So our title is heat conduction through a plane wall. Okay, this is our titles. Means here, boys, what is we assume? We assume the one plane wall. एक plane wall हमने assume कर ली. Okay, so let's I draw the diagram of this plane wall. So see here. A simple diagram of a plane wall. Okay. So this is the simple plane wall. I draw here figure. अब ये प्लेन वॉल निकालने के बाद में बच्चों यहाँ से ये इसकी थिकनेस होगी यल. ओके. Means this L is a thickness of this plane wall. Okay. So L is a thickness of a plane wall. L is a thickness. L is a thickness of plane wall. Okay. Then after that, this wall having some cross sectional area A. So A is a cross sectional area of a wall. Yes or no? Yes. So A is the cross sectional area. Suppose we assume the wall is a homogeneous material. So wall is homogeneous material means what is? The K is the thermal conductivity, it should be constant. So K is a thermal conductivity of a material, thermal conductivity of wall. ओके. तो K इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, L इसकी थिकनेस होगी, A इसका एरिया हो गया. अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज द Q हीट इज सप्लाई दिस वॉल. ये Q हीट इसको सप्लाई की. सपोज वी हैव दिस वॉल एंड सप्लाई द Q हीट. अब Q हीट सप्लाई की तो यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा? T1 और इधर जाएंगे उसका टेम्परेचर T2. सो व्हाट इज हियर? सपोज दिस इज द टेम्परेचर T1 एंड सपोज हियर द टेम्परेचर इज T2. ओके. अब इसके दो फेस है. इधर का फेस का टेम्परेचर है T1 और ये फेस का टेम्परेचर है बच्चों T2. ओके. देन आफ्टर दैट inside consider all these things L, A, K, temperature T1 and T2. Okay. So by the general Cartesian coordinates equations, right? अब ये इक्वेशन बच्चों हम लोगों को पता है. कौन सा? जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर विच कंसिडर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड. सो व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन? टेल मी व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन इज del square T upon dx square. Yes or no? Yes. Plus del square T upon d
वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस व्हाट इज क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। अब ये डेरिवेशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है बच्चों, राइट, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब हमें डेरिवेशन होना ये प्लेन वॉल का, ओके। सो फॉर टू डिटरमाइन द डेरिवेशन ऑफ दिस प्लेन वॉल वी हैव टू कंसिडर सम assumptions. So what are the assumptions we consider here? We assume one dimensional heat flow, okay. Suppose if you consider the one dimensional heat flow, so suppose here this del square t upon del y square is equal to del square t upon del z square become what is 0. ये टर्म हो जाएंगे 0. This is our first assumption. Second assumption, we assume there is no heat source, no internal heat source. अब इसमें बच्चों अगर कोई इंटरनल हीट सोर्स नहीं है तो फिर ये क्यू जी अपॉन के इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0. वी नो दैट. सो दिस क्यू जी अपॉन के इज आल्सो बिकम्स 0. थर्ड अजम्पशन मैंने अज्यूम किया यहाँ पे, द हीट फ्लो इज स्टेडी हीट फ्लो. अब हीट फ्लो अगर स्टडी है, स्टडी का मीनिंग हमको पता है, द रेट ऑफ हीट फ्लो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. हीट फ्लो चेंज होगा क्या? अभी नहीं, वो कैसा रहेगा बच्चों? कांस्टेंट. सो दैट टाइम दिस टर्म इज आल्सो बिकम 0. यस और नो? यस. 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ इज आल्सो बिकम्स 0. तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो देखिए फिर व्हाट इज द इक्वेशन वी गेट del square t upon del x square is equal to 0. We get this equation and suppose I call this is equation number 1. ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगा किसके लिए? ये बच्चों प्लेन वॉल के लिए. सो आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशंस del square t upon del x square is equal to 0, how to prove the derivation for this particular plane wall? तो see here, I erase all these things boys. इसको मैं अभी मिटा देता हूं. ये सब पैरामीटर आपको समझ में आ गए अभी. अब ये इक्वेशन 1 मिलने के बाद में अब ये इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं 2 बार. ओके. सपोज इक्वेशन 1 इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स 2 बार मैंने इसको इंटीग्रेट किया बच्चों. अब इसको इंटीग्रेट किया मैंने 2 बार, तो पहली बार देखिए क्या आ जाएगा. ये सपोज इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी अच्छे तरह से. डेल स्क्वायर टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1. इसको 2 बार इंटीग्रेशन किया मैंने, तो अभी क्या मिलेगा मुझे? पहला इक्वेशन देखिए, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? C1. क्योंकि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों तो क्या आएगा? ऊपर का इक्वेशन आएगा. अब सेकंड टाइम और डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा? फिर देखिए t इज इक्वल टू C1x प्लस C2. इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 विच इज वेरी IMP. ओके. तो मुझे ये t इक्वेशन मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में. t इज इक्वल टू C1x प्लस C2 विच इज वेरी वेरी IMP इक्वेशन टू डिराइव द डेरिवेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन वॉल. अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए दोस्तों, फूरियर्स लॉ हमारे को पता है, हर चीज हमारे को पता है. अभी देखिए, अब इसके अंदर मैं लगाता हूं बाउंड्री कंडीशंस. बाय द बाउंड्री कंडीशंस, ये प्लेन वॉल के लिए. ओके. अब ये प्लेन वॉल के लिए अगर मैंने बाउंड्री कंडीशन लगा दी बच्चों, तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 0.
और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहने वाली है बच्चों, यल। हम इसको अज्यूम करते हैं जब इसको हीट सप्लाई हो रही Q हीट इज सप्लाई, एक ये फेस है, दूसरा ये फेस है, ये फेस का टेम्परेचर T1 है, ये फेस का टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हमारे पास में 0 है, तब T का क्या कंडीशन देखिए, यहाँ पे x अगर 0 है बच्चों तो इधर T का क्या वैल्यू है हमारे पास में, T हमारे पास में है T1, ओके, बाय द बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज दिस आर द बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन वॉल, ओके। सो व्हाट इज द चेंज इन इक्वेशन नंबर 2 फॉर दिस सिचुएशन, सो दिस T इज रिप्लेस्ड बाय T1 इज इक्वल टू C1 इंटू 0 प्लस C2, तो C2 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमारे को, T1, हाँ, फॉर दिस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस। अब यही प्लेन वॉल के लिए अगर हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यहाँ की लेते हैं, तब मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, यल। फॉर अनदर बाउंड्री सिचुएशन इफ x इज इक्वल टू यल, तब ये t कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, T2 हो जाएगा। वेरी गुड फॉर दिस सिचुएशंस, ओके। तो फिर ये इक्वेशन 2 देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, हाँ बताइए, फिर ये t रिप्लेस हो जाएगा बच्चों T2 से C1 इंटू यल प्लस C2, ये इक्वेशन मिला। ये मिलने के बाद में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर T2 C1 यल प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू बताइए, C2 की वैल्यू है T1, तो फिर C1 मुझे कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से मुझे C1 मिलेगा, ये इधर शिफ्ट हो गया बच्चों, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये मिल जाएगा मुझे T2 माइनस T1 अपॉन यल, ये मिल गई मुझे C1 की वैल्यू। तो ये दो कांस्टेंट हमारे पास में आ गए, एक C1 और C2 फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन बॉल, दिस इज अवर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब ये C1 और C2 मिलने के बाद में इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए अभी पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में पुट करने के बाद में देखिए क्या मिलेगा हमारे को, T, ओके। सो T इज इक्वल टू C1 इज व्हाट इज T2 माइनस T1 अपॉन यल इंटू x प्लस C2 इज हाउ मच, T1, बराबर है दोस्तों। ये इक्वेशन हमको मिल गई, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर सपोज 3, ये बन गया मेरा 3 इक्वेशंस, ओके। अब देखिए जब इसके अंदर से हीट फ्लो हो रही, किसके अंदर से, ये प्लेन वॉल के अंदर से, इसका कौन सा डायमेंशन अज्यूम कर रहे हैं हम, 1 डायमेंशनल, द हीट फ्लोइंग थ्रू द अलॉन्ग x डायरेक्शंस, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू विच डायरेक्शन, x के डायरेक्शन में है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ अभी इक्वेशन नंबर 3 को। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों x से कर रहा है, क्योंकि हीट जो फ्लो रही वो अलॉन्ग द x डायरेक्शन है। तो फिर क्या मिलेगा, इसका आंसर देखिए, dt अपॉन dx, d बाय dx ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन यल इंटू एक्स प्लस dt अपॉन dx इंटू T1। अब ये T1 और ये T2 ये तो कांस्टेंट है, आगे यल भी इसका कांस्टेंट है, चेंज होने वाला है बच्चों, नहीं, तो फिर ये आ गया सामने, तो T2 माइनस T1 अपॉन यल, बाद में फिर इधर क्या लग जाएगा, dx अपॉन dx, ये तो 0 हो जाएगा, dx अपॉन dx का आंसर कितना आएगा 1, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फिर dt अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास में आ गई T2 माइनस T1 अपॉन यल बच्चों, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4, बराबर है। देखिए द हीट फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू अलॉन्ग द x डायरेक्शन। अब ये dt बाई dx जो आया, dx जो आया ये स्मॉल एलिमेंट के लिए आया, तो देखिए अभी स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं क्या कंसिडर करता हूँ इसके अंदर, सपोज कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट,
ये स्मॉल एलिमेंट मैंने ये प्लेन वॉल के अंदर कंसिडर किया, जिसकी थिकनेस कितनी होगी बच्चों, यहाँ से ये dx हो गई। ये दो लाइन मैंने ज्वाइन कर डाली, सपोज आई ज्वाइनिंग दिस लाइन्स। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस लाइन, दिस इज आवर टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गया हमारे को यहाँ से तो यहाँ तक बच्चों। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है ये कितना है यहाँ से, ये हमारे पास में dt है। ओके, दिस इज आवर टेम्परेचर ग्रेडियंट dt dx। तो फिर ये मिलने के बाद में बच्चों जब dt अपॉन dx आता है तो तब हमारे पास में क्या आता है, हर बार फूरियर्स लॉ आता है। तो यहाँ पे देखिए ये dx है, इसके लिए अज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया यहाँ से x, ये स्मॉल हो गया थिकनेस इसका dx फॉर स्मॉल एलिमेंट्स। तो फिर बाय फूरियर्स लॉ क्या लॉ है बच्चों, फूरियर्स लॉ, q इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन मिल गया मुझे फूरियर्स लॉ से। ये कौन से के लिए हम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये स्मॉल एलिमेंट प्लेन वॉल का। क्यों, क्योंकि मुझे ये वैल्यू मिली है। तो फिर q इज इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ बच्चों, यस। सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए फिर तो देखिए अभी, सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 में मैंने पुट किया तो फिर क्या मिल गया, q इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू dt बाई dx से रिप्लेस ये टर्म हो गई, तो ये आ गया T2 माइनस T1 अपॉन यल। यस और नो, यस, वी गेटिंग दिस टर्म बॉइज। अब यहाँ पे मैंने ये माइनस से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या मिल गया, फिर q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन यल बॉइज। ओके, अब इसको भी मैं मॉडिफाई करता हूँ तो देखिए अभी क्या मिलेगा इक्वेशन, q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन यल अपॉन के ए, वी गेटिंग दिस। अब ये जो टर्म मिली अपने को यल अपॉन के, ये क्या है मेरी RTH कंडक्शंस, दिस इज अवर यल अपॉन के ए। RTH बोले तो क्या है मेरा RTH सी मेरा है थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शंस, यह पढ़ चुके हम फूरियर्स लॉ के अंदर, राइट। तो फिर क्या इक्वेशन मिला बॉयज फाइनल, q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTHC। ओके, RTHC on D। So this is our final derivations for this particular plane wall। ये इसका डेरिवेशन बन जाएगा बच्चों, q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH कंडक्शन फॉर दिस प्लेन वॉल। अगर ये सवाल एग्जाम में आएगा 7 मार्क के लिए तो आपको यहाँ तक जाके प्रूव करना है। फॉर प्लेन वॉल हाउ मच हीट ट्रांसफर, T1 माइनस T2 अपॉन RTH कंडक्शंस। ओके, अब इसके अंदर अगर ऐसे एक सिंपल सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द वॉल, ओके, ये जो वॉल यहाँ पे लगाई है इसका वेट कितना है, तो वेरी सिंपल, हाउ डिटरमाइन दिस टू कंडीशन, सपोज वेट ऑफ अ वॉल, तो ये सिंपल फार्मूला हमारे पास में है, जैसा आपने को पता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी मतलब हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो फिर मास को हम, वेट को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, mg से लिख सकते हैं, बराबर है, वेट को लिख सकते हैं हम mg से। तो इसको अगर मैं m के जगह अगर g से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर क्या फार्मूला मिल जाएगा मुझे, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया m इंटू जी
अपॉन V, तो फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों, W अपॉन V। V क्या है मेरा वॉल्यूम, तो W इज इक्वल टू रो इंटू V। तो फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या आएगा मेरे पास में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A और इसकी लेंथ L, बराबर है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसकी लेंथ आ गई L, तो वॉल्यूम का ऐसे रिप्लेस हो गया। फिर वेट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू रो इंटू A इंटू L, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या रहता है, मीटर क्यूब। एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में, लेंथ हो गई मीटर में, तो ये बन गया फिर मीटर क्यूब। ओके, तो ये मैंने सिंपल फार्मूले में मॉडिफिकेशन किया। डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन दिस, क्योंकि ये सिंपल है। स्पेसिफिक वेट की आपको डेफिनेशन पता होगा, स्पेसिफिक वेट से ये डेफिनेशन मैंने बनाई है, स्पेसिफिक वेट के डेफिनेशन से। ओके, सो बाय यूजिंग द स्पेसिफिक वेट सिचुएशंस, सो व्हाट इज, अब इक्वेशन देखिए रो इंटू ए इंटू यल, सो वेट ऑफ द वॉल, सो व्हाट इज हियर रो इंटू ए इंटू यल। अब ये यल की वैल्यू हमारे पास में है, कौन सी, ये वाली। तो देखिए अभी मैं यल की जगह पे क्या लिखता हूँ, रो इंटू ए इंटू दिस यल। यल इज रिप्लेस बाय व्हाट इज आर टी एच इंटू के ए, राइट। तो फिर क्या मिलेगा फाइनल, रो आर टी एच इंटू के मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एरिया स्क्वेयर। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशंस ऑफ व्हाट इज वेट ऑफ द वॉल्स, रो आर टी एच के इंटू एरिया स्क्वेयर्स। ओके बॉयज, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द हीट conduction through a plane walls. So if you understand this derivation, I think very well. If you understand, then what is I am saying to you, if you any problem, then you ask the question to me during our meeting sessions. Okay, and if you like my videos, so please share my videos with your friends and your another college friends. Okay boys, so in our next lecture we have to prove this derivation for a variable thermal conductivity, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था अभी, होमोजीनियस था, इसलिए इसका के क्या हुआ बच्चों, फिक्स। लेकिन जब मैं नॉन होमोजीनियस लूँगा तो के क्या हो जाएगा, चेंज वेरिएबल। तब क्या डेरिवेशन हम लोगों को मिलेगा, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो अप टू दैट what is I am saying, stay at home, stay safe, thank you very much.